second. I actually forgot to start the recording. So today we are doing Okay. previous year questions, paper 1, section 2, topic 5, grassroots democracy. We are doing question number 4. I'll read out the question. Explain the linkage between good governance and grassroots democracy and present the record of 73rd Amendment Act towards realization of objectives of sustainable development and inclusive growth. ठीक है, तो इस पे आंसर ये रहा. India has been a welfare state since independence, of which grassroots democracy has been a huge part. It denotes people-driven contribution in elections, decision-making, and governance. Gandhi's Swaraj, M.N. Roy's radical democracy, and Deen Dayal Upadhyay's Antyodaya are Indian versions of grassroots democracy. Wow. All these models aim for democratic decentralization, which is manifest in the Indian Constitution through 77 third, fourth Constitution Amendment Acts, creating an constitutional framework of self-governing local bodies in both rural and urban areas of the country. ऊपर कीजिए. हाँ. Based on the principle of subsidiarity, grassroots democracy enables people to feel a sense of responsibility while maintaining accountability, transparency, effectiveness, and efficiency, which are the pillars of good governance. Sustainable development and inclusive growth have been the wheels carrying grassroots democracy forward through development of agriculture, irrigation, land reforms, thus ensuring SDG 1 of eradicating poverty and SDG 2 of zero hunger. The involvement of local bodies in healthcare sector and and water and sanitation along with primary and adult education uphold the SDG 3, 4, 6, which consequently helps achieving the ऊपर कीजिएगा achieving the goal of decent work and economic growth SDG 8. Reservation for women in panchayats helps to attain the SDG 5 of gender equality. Moreover, mandatory reservations for SCs and STs and voluntary reservation for backward classes ensure inclusive growth. Hence, not just politically, grassroots democracy has helped India to evolve socio-culturally by generating a new leadership method and bridging the gulf between bureaucratic elite and the rest. Thus, Atul Kohli rightly states that PRIs are untapped resources to achieve inclusive growth, which have a long way to go. अतुल कोहली का स्टेटमेंट आया इसमें. आई थिंक गुड गवर्नेंस का जब भी आंसर आए तो उसमें वर्ल्ड बैंक वाला गुड गवर्नेंस का 7-8 पॉइंट्स था ना. अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, इक्विटेबल, इनक्लूसिव, ये सब डालना बेहतर होता है. सही कह रहे हो. और बताओ क्या कर सकते हैं. सर आई थिंक इसमें रिकॉर्ड पूछा ना टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ एसडीजी. आई थिंक कुछ डेटा वी शुड इंक्लूड सम डेटा हाउ मच वी हैव इम्प्रूव्ड लाइक दिस. पहले तो लिंकेजेज है और फिर प्रेजेंट द रिकॉर्ड है. उसमें भी ना रिकॉर्ड ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल है, 74th है ही नहीं. तो रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. अब उन्होंने ठीक है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए उन्होंने सोशल इंक्लूजन पे फोकस किया, इकोनॉमिक इंक्लूजन पे फोकस किया, लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी उन्हीं चीज़ों पे फोकस हुआ है, और हंगर पॉवर्टी पे फोकस किया है. तो रिकॉर्ड तो ठीक है. प्रेजेंट रिकॉर्ड 73rd तो रूरल एरिया में ठीक ठाक ही रहा है, इम्प्रूव तो हुआ ही है.
I think some अ, facts, maybe some facts should be included. हाँ Analysis तो है. मैंने 2-3 स्टेटमेंट लिखा था, उसको ना हर जगह ही घुस जाता है। जैसे कि फिर से आएगा कि पारोमिता सान्याल ने एनालिसिस किया। पारोमिता सान्याल बोलती हैं कि पुअर पीपल आर यूजिंग ग्राम सभा एज ए स्पेस टू डिस्कस रूटीन प्रॉब्लम्स और स्पेस टू एक्सेस पब्लिक गुड्स एंड चैलेंज लोकल इनइक्वालिटीज। तो ये तो उनका रिकॉर्ड ही है, जब वो स्टडी किया है तो डाटा मैंने उनका होगा, एम्पिरिकल स्टडी है। ठीक है. एक्चुअली इसमें जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वाला जो स्टेटमेंट है कि present the record of 73rd Constitutional Amendment Act towards realization of objectives of sustainable development and inclusive growth। तो इसमें जो अतुल कोहली बताते हैं कि बेसिकली जो हमारे जितने भी ग्राम सभा और ये सब जितना भी है वो सप्लाई ड्रिवन रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी डिमांड ड्रिवन ये सब हुआ है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी रही है, जिसने पुश किया है गवर्नमेंट्स को पंचायती राज लाने के लिए बिफोर द 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ, वो लोगों ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, इन्होंने सब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस पे ही फोकस किया है। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ का तो बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे, क्योंकि क्योंकि वो ऐसा बताते हैं, क्योंकि वहां पे वो जो गवर्नमेंट है उसने सप्लाई ड्रिवन रिफॉर्म्स लाए थे, ना कि डिमांड ड्रिवन रिफॉर्म्स लाए थे। मतलब नीचे से कोई पुश नहीं था उसके लिए। तो लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज का, या फिर कैसे हेल्प किया जा सकता है, या कैसे वो किया जा सकता है, बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से स्पेशली एनालिसिस करना एक अच्छा वो बात रह सकता है कि कैसे कुछ स्टेट्स ने बहुत फायदा उठाया है जहाँ पे जहाँ पे पहले से था, और जहाँ पे कॉन्शियसनेस थी लोगों की। और एक और फैक्ट इसमें ये भी है कि वो स्टेट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं जहाँ पे इंटरमीडियरी कास्ट नहीं रहे, मतलब बैकवर्ड कास्ट हैं, और अपवर्ड कास्ट मतलब फॉरवर्ड कास्ट हैं। तो जैसे कि साउथ इंडिया में है, तो ये जो इंटरमीडियरी कास्ट नहीं रहने के कारण वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स मतलब तो ये क्रिस्टफी जैफर लॉट और ये सब लोग कहते हैं कि वहां पे ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर दिखा है। तो मुझे लगता है कि इसका एनालिसिस उस हिसाब से करना चाहिए, एक तो स्पेशली सोशल सॉलिडारिटी लोगों, और जहाँ पे भी ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग रही है, जहाँ पे पार्टीज जो है आइडियोलॉजी में बिलोंग करते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के, जैसे एआईडीएमके हो गया, सीपीएम हो गई, या फिर जेडीएस जो कि कर्नाटका की थी, वहाँ वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है ये तो। वेरी गुड पॉइंट सर, वेरी गुड पॉइंट। तो इसको कंक्लूड कैसे करना है, फिर इंट्रो में क्या लिखना है? तो सर इसको इंट्रो में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक मिक्स्ड बैग रहा है, परफॉर्मेंस तो मिक्स्ड बैग रहा है। और उसके रीजंस बता देंगे कि क्यों परफॉर्मेंस मिक्स्ड बैग रहा है। क्योंकि हम लोग को दिख रहा है ना कि भाई कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, जैसे अपने सदर्न इंडियन स्टेट्स जो कि एजुकेशन हेल्थ में बहुत आगे बढ़े हैं। उसका रीजन ही है क्योंकि वहाँ पे इनलाइटेंड सिटीजनशिप है, वो डिमांड करती है अच्छी चीजें, और फिर उनको सरकार को देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो देंगे नहीं तो वो वोट आउट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे एनलाइटेंड सिटीजनरी नहीं रही है, वहां पे मतलब वो बेसिकली इसको नॉर्मेटिव जितने भी अपने पॉइंट्स जो आप लोग अपने पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो हना अरेंड वना अरेंड के जो भी थे, उसको हना अरेंड ना लिख के सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं कि जहाँ पे एनलाइटेंड सिटीजनशिप थी, पॉपुलर सॉवरेनिटी थी, वहां पे परफॉर्मेंसेस बेटर हुई हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं हुई हैं, जहाँ पे नहीं है, जहाँ इंटरमीडिएट कास्ट हैं, एलीट कैप्चर है, मतलब पब्लिक रिसोर्सेस का, वहां पे परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई है। और एक और पॉइंट ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जहां जहां पे ग्रास रूट्स जिन वहां पे बहुत स्ट्रांग रहा है, वहां वहां पे पंचायती राज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं प्लस हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रास रूट्स में बहुत पकड़ रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी आइडेंटिटी पे इश्यूज पे नहीं इलेक्शन लड़ती हैं, हमेशा ये लोग लोकल मुद्दों पे लड़ते हैं। तो वहां वहां पे परफॉर्मेंसेस बेटर हुई हैं। और कंक्लूड ऐसे ही कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक तरीका रहा है कि लर्निंग और इसके लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे स्टेट्स के बियॉन्ड है। जैसे सोसाइटी को आप चेंज नहीं कर सकता पंचायती राज,
बट स्टिल जो है एक परफॉर्मेंसेस जो है वो इंस्पायरिंग रही हैं और डेमोक्रेटिक स्पेस मिला है लोगों को, जेंडर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब जेंडर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, प्लस एक्सेस टू बेसिक पब्लिक रिसोर्सेज जो है वो बहुत असर्टिव हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं एंड में कि दो मिक्स्ड बैग रहा है बट एक इंस्पायरिंग मॉडल भी रहा है साथ बाय साइड। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, बहुत अच्छे से एनालाइज हुआ इधर। पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स इनहैंस्ड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। if पंचायत, दूसरा क्वेश्चन है, if पंचायत आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन देन वुमेन SHGs आर एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, टूल मिला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मिलता जुलता, न्यू पंचायत राज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये 73rd के बाद न्यू हो गया था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है फिर से। हैज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर्ड वुमेन पंचायत इन इंडिया। तो कुल मिला के सेट हो गया टोन वुमेन एंड पंचायती राज। सेवेंटी थर्ड मैं आंसर पढ़ रहा हूँ। 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर empowering common individual, particularly women, by providing 33% reservation. Article 243D and T in 74 लिखना कोई बात नहीं। PRI had been envisaged by Gandhi as an instrument of as a grassroots participatory democracy unit of equitable and citizen-centric growth. Nipur Tiwar highlights that without reservation for women, they would have been left out of grassroots politics. Nearly 1 million elected representatives are women, with around 85,000 women punch and sarpanch highlight the empowering effect of PRI. Women in power at grassroots levels, as highlighted by Esther Duflo, Nobel Prize winner economist, are more concerned about developmental issues such as water, sanitation, and focusing more on women-centric issues. More resources are being diverted to raise socio-economic parameters. Also, women from SC/ST have been empowered to lead other castes. To dilute the credentials, as Ambedkar held that villages are den of caste communalism and ignorance, and lower castes aren't safe under high castes. But certain factors have also combined constrained empowerment, such as Pati syndrome, Sarpanch, where female exists as mere proxy. Females are part but not participants in issues such as, example, identifying BPL. Nirmala Baruch held that empowerment has diluted since of lack of 3Fs, funds, functions, and functionaries. Impasse over women reservation bill. Impasse over women reservation bill. अच्छा, ये कैसे है? But many states like Bihar have raised women reservation to 50%, and as held by Malla Yusuf, we can't move forward if half of us have held back. उसी का है. Thus need is to further increase reservation and to confront other challenges faced by women members. ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। हाँ ठीक है, इतना हो गया, इसमें तो ऐड हो ही सकता है। और है, अच्छा एक बार फिर से एक बार स्ट्रक्चर बताना, क्या क्या था इसमें।
उसमें है कि पहले तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट दिया, एम्पावरिंग वुमेन है, 33% रिजर्वेशन का बात है। फिर गांधी जी बोले थे कि ग्रास रूट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का है, इक्विटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक है। फिर निपुण तिवार बोली कि विदाउट रिजर्वेशन वुमेन वुड हैव लेफ्ट आउट ऑफ ग्रास रूट पॉलिटिक्स। फिर है कि वुमेन इन पावर ऑफ एट ग्रास रूट लेवल है कि एस्टर डफलो बोलती है कि वो वुमेन सेंट्रिक इश्यू पे फोकस करती है यदि वुमेन रहती है तो हेड। फिर है कि SC ST जो है वुमेन फ्रॉम SC ST जो आई हैं एम्पावर हुई हैं, तो विलेजेज आर डेन ऑफ कास्ट कम्युनिज्म को अम्बेडकर बोले थे, उनको भी थोड़ा इरोड कर रहा है, मैंने चीज़ों को रिफॉर्म कर रहा है। फिर लेकिन सर्टेन फैक्टर्स है उसके बाद ये आ गए हैं कंस्ट्रेंट्स पे कि पति सिंड्रोम है जो सुधा पाई बोली थी, और निर्मला भरूच का है कि एम्पावरमेंट डाइल्यूट हो गया है क्योंकि 3F फंक्शनरी ही नहीं मिल रहा है। एक चीज़ इन्होंने लिख रखा है इम्पासिव ओवर वुमेन रिजर्वेशन बिल, शायद वो ऊपर में था लेजिस्लेचर में, इसमें नहीं है। अब मैनी स्टेट्स ने दिया है, जैसे बिहार ने 50% दिया है, लेकिन मलाला यूसुफजई का स्टेटमेंट लिखा है कि वी कांट मूव फॉरवर्ड इफ हाफ ऑफ अस हैव हेल्ड बैक। मैंने एज ए सिविलाइजेशन हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारे आधे जनता को पीछे रखा जाए। ठीक है, ये रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रही हैं और अदर चैलेंजेस फेस बाय वुमेन। लेकिन फेस बाय वुमेन में एक दो तीन चीज़ें और आती है कि जैसे कि रिजर्वेशन रोटेशन बेस्ड है, तो जब सीट रोटेट होता है ना, तो जस्ट लाइक जैसे अभी कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर को जब एक्सपीरियंस डेवलप होता है तब तक वो रोटेट हो जाते हैं, तो यहाँ भी है कि जब एक्सपीरियंस गेन करती है, कॉन्फिडेंस गेन करती है, तब तक उनका सीट रोटेट हो जाता है, तो इसको भी रोकने का है। फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी यहाँ भी है, जरूरी है वुमेन के लिए भी। थर्ड थिंग है कि सोसाइटी को पेट्रियार्कल माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। फिफ्थ है कि ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल एंड रेस्पेक्टेड मतलब वुमेन लीडर्स एट ग्रास रूट लेवल्स। तो ये तीन चार चीज़ें और ऐड हो सकती है। दशरथ सर, हेलो। जी जी सुन रहे। सर आपके वो जो पॉइंट्स हैं आखिरी के काफी अच्छे हैं, बस उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बड़े होलिस्टिक लगे मुझे। तो उसमें एक और चीज ऐड करना होगा, जो पर्सनल इज पॉलिटिकल है ना, वो चीज एक ऐड कर सकते हैं कि भाई विमेन रिजर्वेशन ने एक्चुअली पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला जो सिंड्रोम है उसको ब्रेक किया है। क्योंकि अब विमेन जो है वो सिर्फ मतलब फैमिली में नहीं रह रही हैं, फैमिली के बाहर आ रही हैं और इलेक्शन में पार्ट ले रही हैं, इलेक्ट हो रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। और एक और पार्ट इसमें ये भी है, एक स्टडी है, मैं अभी थोड़ी देर में देख के अपने नोट से बता दूंगा। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो एम्पावरमेंट ऑफ जो बैकवर्ड कास्ट वुमेन है वो ज्यादा हुआ है देन अपर अपर कास्ट वुमेन को। तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो अपर कास्ट वुमेन चुन के आ रही हैं वो डायनेस्ट्स हैं, पॉलिटिकल डायनेस्ट्स हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट वुमेन चुन के आ रही हैं वो बहुत ज्यादा एम्पावरिंग और वो है, मतलब उनको मतलब उस तरह की चीजों से, पेट्रियार्की को फाइट करने और ये सब में पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उनके अंडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। एक बहुत ही अलग सी मुझे एक स्टडी में ये चीज पता चली थी। और एंड में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब कंक्लूजन करना है तो उसमें ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था, कि जो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हम लोग डेमोक्रेसी को लेके आके लोगों को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट उसको फुलफिल करता है। तो जैसे वेस्टर्न थिंकर से कहते हैं कि नहीं, आपके यहाँ डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, लोग पहले से डेमोक्रेसी चाहने चाहिए, तब डेमोक्रेसी आ सकती है। लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, और फिर डेमोक्रेसी आएगी अपने आप ही। तो वो वाला एक पॉइंट एंड में आपका लिख सकते हैं, जो आपने 5-6 पॉइंट्स किए हैं उसको अगर हम लोग एक पैराग्राफ में फटाक से लिख दें कि जो रोटेशन वाला पॉइंट है आपका काफी अच्छा है, पेट्रियार्की वाला है, और ये जो कास्ट वाला जो है वो वाला पॉइंट लिख देंगे कि भाई जो अपर कास्ट वुमेन है वो मोस्टली पॉलिटिकल डायनेस्ट्स हो रही हैं, और जो लोअर कास्ट वुमेन है क्योंकि वो पेट्रियार्की से बहुत ज्यादा फाइट करती हैं तो उनके अंदर की कॉन्स्टिट्यूंसीज ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आप एक प्रेशर ग्रुप है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेसी जब भी हम लोग बोलते हैं तो लोअर के रेफर किया जाता है, ना कि अपर ब्यूरोक्रेसी। अपर ब्यूरोक्रेसी को सिविल सर्वेंट बोलते हैं, लोअर वालों को ब्यूरोक्रेट्स ही डायरेक्टली बोलते हैं। तो उसके जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो आपने पॉइंट कहा था वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। जी सही कह रहे हैं, आपका कंक्लूजन भी अच्छा लगा था डेस्टिनी वाला, जो PRI के हाँ सर। थ्रू डेमोक्रेसी कर डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं और उसमें पर्सनल इज पॉलिटिकल। हाँ सर। हाँ ये बढ़िया है कि इंट्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स।
चले? जी। ठीक है, तो हमने 5th क्वेश्चन कर लिया अभी, और कोई 6 एंड 7 लास्ट में करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पे आंसर नहीं है, एक बार उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। Bring out the common and unique features of 73rd and 74th amendments to the Constitution of India. सर इसमें ये 2002 का क्वेश्चन है और 1992 में हुआ था ना, तो 10 साल के बाद ये क्वेश्चन आया होगा। तो कॉमन एंड यूनिक फीचर्स 74th और 74th में, तो कॉमन तो हमारा नोट्स में ही है, इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। अरे बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफरेंसेस है। कॉमन है सर कि उन्होंने दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है, एक पंचायती राज को और एक अर्बन लोकल बॉडीज को। दूसरा कॉमन है कि दोनों के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन में प्रोविज़न दिया गया है। तीसरा कॉमन है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का भी है। चौथा कॉमन है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कॉमनलिटी है। फिर है 5 ईयर का टर्म्स में है, रेगुलर इलेक्शन का है, प्रोविज़न फॉर इलेक्टेड हेड्स है, इलेक्टेड मेंबर्स है, और फिर है कि इतना हो गया। फाइनेंसेस में भी बता दिया, इलेक्शन में बता दिया, प्लानिंग में नहीं, वो तो यूनिकनेस में आ जाएगा। हाँ, प्लानिंग नहीं है उनके में ना, अर्बन लोकल में। फिर हाँ, ये इतना ही कॉमन है सर, टर्म्स में, फाइनेंस में, इलेक्शन में। और ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ ऑफ देम हैव सम कंपल्सरी प्रोविजंस, सम वॉलंटरी प्रोविजंस लेफ्ट टू द स्टेट टू फिल इट। A skeleton has been provided by the Constitutional Amendment Act. Flesh and blood have to be provided both. इतना कॉमन मुझे दिख रहा है। और इसके बाद यूनिक फीचर्स बताता हूँ। 73rd इज रूरल एरिया बेस्ड फोकस्ड, इट इज 3 tier मॉडल, और क्या है 74th का बताता हूँ, अर्बन लोकल बॉडीज है वो। फिर टाउन प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात है उसमें। फिर दोनों में टैक्स बेस है, तो एक चीज़ यूनिक फीचर तो ये है कि दोनों का टैक्स बेस अलग अलग है, एक में 11 है, एक में 29 है, ये भूल गया किसमें क्या है, ये भी एक यूनिक फीचर में आएगा। देर इज नो ग्राम सभा लाइक बॉडी इन द अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये है। और किन्हीं को कोई पॉइंट आता है तो ऐड करिए प्लीज। सर रिजर्वेशन को ऐड कर सकते हैं? कॉमन, हाँ सही कह रहे, दोनों में कॉमन है, रिजर्वेशन टू SC ST एंड वुमेन। सर एक यूनिक फीचर ये है कि भाई जो उनका मेयर है वो बस एक नॉमिनल हेड है ना, उसके पास ज्यादा पावर वगैरह नहीं है। और जो सरपंच है वो काफी पावरफुल बॉडी है। जी सही कह रहे। सर एक थोड़ा सा कंफर्म करिएगा मुझे कि सरपंच होते हैं ये इनडायरेक्टली, मतलब इनका इलेक्शन का जो है वो प्रोसीजर जो है वो स्टेट्स पे छोड़ा गया है ना, कि कुछ बताया गया है कि इनडायरेक्टली ही होंगे ये, सॉरी डायरेक्टली ही होंगे ये ग्राम आई सभा थिंक वो तो है। स्टेट लेजिस्लेचर का डिसाइड डिसीजन करेगा। होता है ना। अच्छा अच्छा। आई थिंक डायरेक्ट इलेक्शन ही है उसमें, कंपलसरी प्रोविजन है शायद वो।
कोई कंफर्म कर लो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पे कि कंपलसरी, और यहाँ पे कंपलसरी नहीं है मेयर वाले का। मेयर वाला का हर स्टेट अपने अपने हिसाब से करता है। हाँ, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, फर्स्ट टायर जो है लोअर ग्राम सभा में, वो तो डेफिनेटली कंपलसरी डायरेक्टली इलेक्शन है। जो टॉप टू हम्म टायर है, मीडियम टायर एंड थर्ड टायर, सॉरी फर्स्ट टायर, उसको, ये इनडायरेक्ट हाँ है। समझ गए समझ गए। अच्छा अच्छा, ये इनडायरेक्ट नहीं है सर, शायद ऐसा है कि सर ये ऑप्शनल है, कि मतलब स्टेट डिफाइन करेगा कि डायरेक्ट करना है कि इनडायरेक्ट करना है। कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉमन पॉइंट है कि बोथ ऑफ देम हैव द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। हाँ और है कि 11th से, हाँ ये तो भूल ही गया, 73rd हैड एडेड 11th शेड्यूल, 74th हैज एडेड 12th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स है पंचायत के परव्यू के लिए, और उसमें अर्बन लोकल 18 है, 74th में 18 है। 18 है शायद। हाँ जी हाँ। जी, तो ये भी एक यूनिक यूनिक फंक्शन है। और ये 11th 12th शेड्यूल कोई आंसर में लिख ही नहीं रहे ना, हमारे नोट्स में कहीं लिखा था। अरे सर ये वाला मुझे नहीं लगता कि इस वाला क्वेश्चन वापस आएगा, ये जो उस समय आया था तो वो पूछ दिए होंगे नए नए में। काफी हाँ सिंपल लेकिन लग रहा है अभी के अरे हिसाब से। 2022 आ रहा है ना। हाँ कॉन्टेक्ट हाँ हाँ। इससे कंटेंट इधर से उधर जाता रहता है ना। हाँ वो भी बात सही है। अच्छा, एक और चीज मैंने कंफर्म कर लिया, 3 टायर जो इलेक्शन में बोल रहे थे ना, इट इज हाँ ए हाँ कंपल्सरी प्रोविजन। हाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं एट ऑल द लेवल्स, हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं चेयरमैन के लिए। हाँ मतलब तीनों लेयर्स, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बट हाँ। सिर्फ चेयरपर्सन जो होते हैं उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अच्छा। एंड इसमें एक स्पेसिफिक हाँ केस है कि चेयरपर्सन इन विलेज, आई थिंक जो हाँ सरपंच वाला तुम बोल रहे हो ना, वो हाँ हाँ चीज हाँ हाँ स्टेट हाँ। लेजिस्लेटिव असेंबली डिफाइन करती है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा मतलब पावर होता है, इसलिए इसीलिए उन लोगों ने उसको ऑप्शनल रख दिया है। ठीक है ठीक है। सही हाँ, सही सिर्फ सही कह रहे हैं आप, सरपंच को सही आई कह रहे हैं। थिंक ऑप्शनल रखा है, बाकी हाँ सब हाँ हाँ, मतलब कंपल्सरी सबका प्रोविजन है उसमें डिफाइन भी। कर दिया है। हाँ हाँ, डिफाइन कर डिफाइन कर दिया दिया, है। उसमें भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों है। थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लेक्स हाँ बना दिया फालतू का यार ये। हाँ 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 हाँ। और एक चीज 74th में कैसा है पता नहीं। 24th में तो मुझे पता है सर, वो मेयर जो है ना वो ऑप्शनल वाला पार्ट है। अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा डिफरेंस है, वेरी गुड पॉइंट। हम्म। ओके। अच्छा, एनी अदर इनपुट्स, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो इसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या करेंगे? स्कॉलरली तो कुछ मिलना मुश्किल है इसमें। इसका तो सीधे 73rd से स्टार्ट हो जाइए, और स्टार्टिंग तो ऑलमोस्ट वही जाता है। या तो या तो कुछ वैसा कुछ खास रहे तो उनका था ना, ट्राइस्ट विद डेमोक्रेसी लेके जाएंगे टूर स्टेप पे, ये भी बहुत अच्छा स्टार्ट मुझे लग रहा है। हाँ सर, सर आई ये थिंक एक्चुअली में हम गांधी। अ, गांधी तो सभी लिख रहे हैं और सर, हम लोग को जवाहरलाल नेहरू का बात बोलना चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेसी घर घर तक ले जाने का प्लान है, ना कि डेमोक्रेटिक जब बनेंगे उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, ऐसा हम लोग की जो थिंकिंग थी हाँ वो। या आई थिंक ओशियानिक सर्किल्स ऑफ समथिंग विल बी देयर ना, हाँ, गांधी सही का करे वर्ड सही वो करे। भी लिख सकते ओशियानिक सर्किल्स ऑफ पावर जो है, एम्पावरमेंट ऑफ मासेज, वॉइस टू हाँ वॉइसलेस, मास पावर टू वॉइस, भूल गया। हम्म। हैं। तो वो वाला कंसेप्ट है। और जो अभी एक आंसर में देखा था, रेडिकल डेमोक्रेसी ऑफ उनका आयमन रॉय, अंत्योदय ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, और अपना ग्राम स्वराज गांधी ऑफ का महात्मा स्वराज, गांधी। ग्राम स्वराज। हाँ। तो इतने सारे हैं, आप जो उन क्वेश्चन जिस इसमें क्वेश्चन में एक जैसा और है, एक और भी है, एक मैडम ने कभी क्लास में बताया था, एक एलिनोर ऑस्ट्रॉम करके हैं, उनका गवर्निंग द कॉमन्स का भी एक कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है वो, और उन्हें नोबेल वोबेल भी मिला हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि गवर्निंग द कॉमन्स जो होता है, अब वो वाला पहले होता था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स होता था, कि मतलब अगर आप ग्राम सभा वगैरह को दे देंगे तो करप्शन हो जाएगा, और लोग किसी की एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का हो जाएगा। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, जो कॉमन्स जब गवर्न करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आउटकम्स आते हैं। तो अगर मतलब किसी को अगर इच्छा हो लिखने की तो लिख सकता है। हाँ ये सही बात है। ऐसे लगता था कि नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वंस प्रॉपर्टी, नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सोचकर हाँ वो मासेज पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। नाउ आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस सेट करता है कि आउटपुट इज द रिवर्स। सही बोल रहे हाँ हाँ हाँ। कंक्लूड कैसे करेंगे? सर कंक्लूड ऐसे करेंगे कि जैसे अर्बन, वैसे रूरल में तो काफी अच्छा हो गया है,
बट अर्बन में अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हैं हम लोग, तो उसमें भी उसको काफी कन्वर्जेंस आनी चाहिए, नहीं तो उसका फिर स्ट्रक्चर में कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि जो कि स्टेप्स तो काफी अच्छे हुए हैं, लेकिन रूरल अर्बन दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे फर्दर लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार आई थिंक कंक्लूजन में निगेटिव को लिखने के बजाय वी कैन गो हाँ। कम्प्लीटली पॉजिटिव। कोई हम्म इशू नहीं है, मतलब जैसे नेहरू जी का स्टेटमेंट आपने बोला ना कि डेमोक्रेसी हम्म हैज टू बी ब्रॉट एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, हम बोलेंगे कि हम्म एज पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज डेमोक्रेसी हम्म नीड्स टू बी ब्रॉट टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेसी हम्म इटसेल्फ कैन बी यूज्ड टू मेक पीपल हम्म डेमोक्रेटिक। एंड इन दिस हम्म प्रोसेस जो ये 73 74 अमेंडमेंट एक्ट है, दिस हैज हम्म टेकन दिस विजन फॉरवर्ड, ऐसा कुछ। हम्म। जी। और वे फॉरवर्ड में 2 पॉइंट याद आ रहा है नोट से ही, कि मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए ताकि पति पंचायत वाला सुधा पाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऑडिट काउंटर हो। वाला, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे और पुंछी कमीशन बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए हर स्टेट में, जिसमें कि लोकल इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो ताकि डिवोल्यूशन ऑफ फंड इफेक्टिवली हो। और एक दो पॉइंट्स थे, वॉचडॉग बॉडी बनानी है, एंड एक और था, ये तो भूल गया मैं। और मैं सर एक जो सोशल अपने ऑडिटिंग। पैरास्टेटल्स का भी प्रॉब्लम आता है, उसको भी अर्बन लोकल बॉडीज से हटाना है, कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के और ये सब पंचायत को बाईपास कर देती है। हाँ, वो अर्बन गवर्नेंस के लिए ईशर जजुलवालिया कंट्रीट करती है, देयर कांट बी स्मार्ट सिटी विदाउट स्मार्ट म्यूनिसिपैलिटी, इसी बात को देखते हुए। कौन बोलता है सर ये स्मार्ट सिटी, कौन बोलता है? ईशर जजुलवालिया जो आपने अच्छा अच्छा, वो तो बताया। हाँ वो तो गुजर गई शायद ना इस बार, तो उसका उनका हाँ काफी हाँ, अच्छा रहेगा लिखने पे। जी जी, एसपीवी को ही टारगेट की थी कि एसपीवी बनाना का स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बट देयर कांट बी स्मार्ट सिटी विदाउट स्मार्ट म्यूनिसिपैलिटी। अच्छा और एक एक सेकंड, 11 मिनट खत्म हो गया, अपन आगे चलना चाहिए। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ वर्किंग ऑफ पैसा। तो प्रोविजन बताने हैं ना, वर्किंग ऑफ पैसा बताना है। तो अगर किसी को याद है पैसा के बारे में, जो जो याद है बता दो। हाँ ठीक है सर, ये तो लक्ष्मीकांत में निकल जाएगा। मैं बोल दूं क्या देख के? बोल दिया मैंने अभी बोल के। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो पैसा एक्ट कोशिश 1996 में आया था। हाँ बोलो बोलो, ट्राई करना तो कर लो। सर, आप ना एग्जैक्ट बोलेंगे, उसके बाद कुछ बच जाएगा तो देख लेंगे, अदरवाइज है आपका। ठीक है। ठीक है, तो पैसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? सेल्फ रूल करना है, प्रिजर्व द ट्राइबल ट्राइबल ट्रेडिशंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लानी है, एंड एम्पावर ग्राम सभा। फीचर्स क्या थे? ग्राम सभा एट पंचायत एंड विलेज लेवल पे एम्पावर करना है, रिजर्वेशन लाया उन्होंने इन ग्राम सभा, पॉपुलेशन अगर एसटी का है, जैसे क्या लिखा है यार, 1/2 मेंबर्स, हाँ अगर मोर देन पॉपुलेशन एसटी का 1/2 मेंबर्स है, मुझे ही नहीं याद आ रहा यार। वही है, मतलब शायद जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो वहाँ पे उतने मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा कुछ प्रोविजन बनाया था। हाँ आई थिंक वन एग्जैक्टली, हाफ मेंबर्स का है। हाँ हाँ, ये 5th शेड्यूल एरिया के लिए ही बात हो रहा है, पैसा का। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वही मतलब जहाँ पे ट्राइबल एरिया ज्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पे 1/2 मेंबर्स एटलीस्ट हैज टू बी एसटी मेंबर्स। कि जो भी चेयरमैन होंगे ना, ऑल द चेयर्स एट ऑल द लेवल्स हैज टू बी शेड्यूल ट्राइब वाला। स्टेट गवर्नमेंट मे नॉमिनेट शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स मैक्सिमम 1/10 एट इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मतलब ये ऑप्शन दिया उनको, लेकिन ऊपर वाले तो कंपलसरी प्रोविजन थे। फिर स्टेट लॉ जो भी बनेंगे, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि दे आर इन कंसोनेंस विद ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ 5th शेड्यूल एरिया पीपल। तो ग्राम सभा को एम्पावर कर दिया टू प्रिजर्व ट्रेडिशंस कल्चरल आइडेंटिटी। ग्राम सभा को रोल दे दिया आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज, अप्रूवल ऑफ प्लान्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड ग्राम सभा विल बी कंसल्टेड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। माइनर वाटर बॉडीज का मैनेजमेंट के लिए उनको पावर दे दिए गए। रिकमेंडेशंस ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायती लिए जाएंगे फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस, माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स। तो मतलब काफी हद तक ग्राम सभा को एम्पावर किया, लैंड मैनेजमेंट के बारे में, माइनर वाटर के बारे में, ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के बारे में, माइनर मिनरल्स के, एंड जो भी लॉज ऐसे इनकंसिस्टेंट होंगे इन सब चीजों के बारे में, तो दे विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर विद इन 1 ईयर। मतलब 1996 में बना था, तो 1 साल में एक्सपायर हो गए सारे। तो ग्राम सभा रेगुलेट करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस,
sale of intoxicants, land alienation, village market and money lending institutions, local plans resources. तो ये सारे पावर जो है ग्राम सभा के एम्बिट में लेके आ गए उस एरिया के लिए. एंड स्टेट लेजिस्लेचर follow 6 schedule pattern while designing administrative arrangements. ठीक है. किसी ये को हो ऐड गया करना सर. है? हाँ, इसमें ना कहीं कहीं ना इसमें कि एग्जामिन द प्रोविजंस है, तो कहीं लिखा हुआ था कि एग्जामिन्स करेंगे, दीज आर द प्रोविजंस. तो ये ना ग्राम सभा जैसा ही प्रोविजंस एग्जामिन होगा कि बहुत सारे स्टेट ने पेशा एक्ट को अपनाया ही नहीं, और जहाँ स्टेट लेजिस्लेशन है उन्होंने अपनाया ही नहीं, और जिन्होंने अपनाया तो उन्होंने स्पिरिट में नहीं अपनाया, जैसा कि बताया गया था वो करना था. दूसरा है कि ग्राम सभा का जो मीटिंग है वो भी ना जैसे उस हमारे नॉर्मल पंचायती राज में होता था कि दे आर बिकमिंग लाइक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स. वो खुद के इश्यू ग्राम स्वराज जैसा कॉन्सेप्ट को मतलब इफेक्टिवली नहीं कर रहे, जैसे कि केरल में उन्होंने बताया कि ग्रास रूट मूवमेंट हुए, तो वैसा नहीं हुआ. तो इसके कारण ना पेशा में भी वही इश्यू है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गया. और एक एग्जांपल है कि लैंड एक्विजिशन, जैसे उड़ीसा का केस आता था, तो पेशा के अंदर क्या होता है, सीधे वो दे मैंने कंसेंट ले लेते हैं, दे देते हैं, वो ट्राई मैंने कागज पे, वो एक्चुअल मीटिंग नहीं होती. तो प्रोविजंस यही है कि इन स्पिरिट में नहीं हो रहा है एग्जैक्टली सब चीज़. ठीक है. और कोई पॉइंट्स है किसी के पास? आई थिंक जो ओडिशा वाला एग्जांपल दिया आपने, ट्राइबल प्रोटेस्ट के एग्जांपल दे सकते हैं हम कि मतलब ये 100 प्रोविजंस है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर सीइंग द एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल्स. जैसे आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हिल था कोई तो उड़ीसा में, कांधमाल या नियामगिरी हिल्स? नियमगिरी प्रोटेस्ट है शायद फॉरेस्ट के बारे में. जी. तो हम मेंशन कर सकते हैं कि मतलब रिसेंट टाइम में ठीक है, इतनी ये सब होने के बावजूद फिर जो आई थिंक मणिशंकर अय्यर कमेटी वाला था ना, नेक्सस बन रहा है. तो वी कैन राइट कि इवन हियर इन दी एरिया आल्सो वी सी एन नेक्सस. हाँ, सही कह रहे. और क्या बोल सकते हैं? उसी का उठा उठा के लिख सकते हैं, ऐसे तो एग्जैक्टली एग्जामिन तो प्रॉपर पता नहीं क्या क्या, एक दो ही पता था. बाकी लोग बताओ, कुछ किसी को बताओ तो. आई थिंक एक और चीज बोल सकते हैं कि मतलब टू एन एक्सटेंड इंसर्जेंसी वगैरह है वो काफी हद तक कम हो गया. मतलब जो डिससेटिस्फेक्शन था लोगों में, जो लेजिटिमेशन क्राइसिस था पहले, वो काफी हद तक कम हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोविजंस. तो मोर इंक्लूजन, ये पॉजिटिव है, हाँ, सही बोल रहे हैं आप. एक तो हो गया, हाँ, आपने सही बताया. मतलब मोर इंक्लूजन आया है, काफी ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा है, मतलब रिजर्वेशन वगैरह सब प्रोविजन देके. दूसरा मैं जोड़ूं इसमें कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने में हेल्पफुल है उन शेड्यूल एरियाज को, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ शेड्यूल एरियाज इन नेशनल पॉलिटी. ठीक है. फिर इसमें वो जो नेहरू वाला था ना, वो भी डाल सकते हैं कि हम इफ पीपल आर दो नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी वी कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी एट द डोर स्टेप ऑफ पीपल. जी जी, बिल्कुल सही. जी. एंड इसमें फिर अपन वो भी लिख सकते हैं, गांधी जी का तालिस्मान वाला नहीं था, वीकेस्ट ऑफ द, हाँ क्या था, पोरेस्ट हाँ ऑफ द हाँ पुअर एंड वीकेस्ट ऑफ द हाँ, वीक. लास्ट मैन ऑन द लेडर, मैंने हाँ, क्या बोलते हैं, सबसे मतलब नीचे ठीक वाला. है, इन विजन को इम्प्लीमेंट कर रहा है. इफेक्टिवनेस तो ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है. जी, लेकिन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है, पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली एम्पावरमेंट ठीक भी है. कर ही रहा है. ओके, आगे चलेगा. जी. ठीक है. तो नेक्स्ट अपन 3 4 कर लिया, 5वां भी कर लिया, 6th एंड 7th बचा है. क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज. अर्बन गवर्नेंस हैज बीन, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अर्बन गवर्नेंस हैज बीन लार्जली मिसिंग फ्रॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क. ठीक है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड ऑफ ओवरहॉलिंग अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड रिफॉर्म्स नीडेड. रिसर्च जलवालिया आनी चाहिए इसमें. ठीक है. आंसर पढ़ रहा हूँ. अर्बन सिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट क्लोज टू 50% ऑफ इट जीडीपी. आप यही था ना? सही है, सही है. 50%. However, ULB is responsible for their governance are able to generate only 1% of national GDP. ये शायद अपन ने थोड़ा अच्छा. अलग पढ़ा है.
It was written कि only 1% of the national GDP is used as an expenditure on the urban local bodies. सही कह रहे हैं। तो जो आयुष सर के नोट्स में जो अपन ने पढ़ा वो ऐसा था। अब वो वेरीफाई करना होगा कि वो एग्जैक्टली क्या है। किसी और उसमें था को कि कुछ उसमें तो इस पे कुछ खास नहीं है, सही कह रहे, उसमें 1% था। अभी देखता हूँ खुला हुआ। नहीं ठीक है, उसमें तो वही है, बट एग्जैक्टली कंटेक्स्ट क्या है उसका देखना पड़ेगा। बट एनीवेज आई थिंक की टेक अवे ये है कि अर्बन हाँ, बॉडीज के उसमें बारे में टैक्सेशन, जीडीपी एंड एक्सपेंडिचर, इनके बारे में फिगर्स थोड़े से पढ़ के रखना है अपने को। जी, उसमें लिखा है कि कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया इज 1% ऑफ जीडीपी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। तो जितना भी एक्सपेंडिचर करते सारे लोग अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी, वो 1% है इंडिया के जीडीपी का। ठीक और है, अपने सोर्स से सिर्फ 44% रहा। ठीक है सर, इसको कंटिन्यू करते हैं। दशरथ जी आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। आई रीड द आंसर। There ओके is सर। a need for overhauling the urban governance structure as it suffers from following issues. One, lack of powers with elected representatives at local levels, under-representation in parliament, overlapping jurisdiction or bodies, example Bangalore Development Authority, BDA, BBMP. तो ये अच्छा हो गया कि इन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है। फिर फोर्थ पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम यूएलबीज, एग्जांपल्स एससीएम टू बी अंडर सीईओ ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। एससीएम क्या है? एससीएम क्या है? स्टेट कमिश्नर? नहीं। हेलो, हाँ, वो स्पेशल कमिश्नर, पता नहीं, एससीएम अंडर सीईओ स्पेशल कमिश्नर ऑफ। चलो ठीक है, अपन इसको वैसा बना देंगे, क्या बोलते हैं इसको, कि पावर्स ऑफ मेयर या फिर कमिश्नर स्मार्ट सिटी मिशन, हैज बीन, स्मार्ट सिटी मिशन। सॉरी, अच्छा, अच्छा, स्मार्ट ओके सिटी ओके, मिशन। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, फाइनेंशियल पॉसिटी, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप बाय इकोनॉमिक सर्वे, नॉन यूनिफॉर्मिटी इन म्युनिसिपैलिटीज, नो इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक ग्राम सभा, लो एक्सपर्टीज इन यूएलबी स्टाफ। According to Isha Ahluwalia, following structural issues need to be addressed. Federal system which does not empower third tier, political system which is biased towards rural development, lack of institutional framework for metropolitan planning. Following reforms are needed: fiscal decentralization, devolve more taxation powers. Economic survey calls for innovative financing methods like municipal bonds, credit rating cities, review of property tax system, create database properties using GIS mapping, set up National Commission on Urbanization to deal with rapid urbanization, proper categorization of urban local governance into 3 tiers: municipal council, ward committee and area sabha, या फिर मोहल्ला सभा बोल सकते हैं। Shashi Tharoor calls for direct election for the post of mayor. वाओ, Okay. Clear activity mapping of mayor's functions. अच्छा, एक चीज नोटिस कर लो, शशि थरूर यहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेयर बोल रहे हैं, एंड एट ये प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी जाने को बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्लियर एक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेयर्स फंक्शंस, ये किसने रिकमेंड करा है एक्टिविटी मैपिंग वाला पॉइंट? ये शायद मणिशंकर अय्यर का था, भूल गया मैं, देखता हूँ, नहीं खोल नहीं लेता हूँ। नहीं, मणिशंकर अय्यर नहीं है। हाँ, ऐसे ही करे, एक दूसरा पूंछी नहीं कमीशन भाई। होगा, पूंछी कमीशन है एंड सेकंड एआरसी है। दे से कि एक्टिविटी मैपिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल क्या है? हाँ, which can be done at local level should not be done by the state, and which can be done by state should not be done by center. ठीक है, तो build institutional capabilities, widen tax base, entertainment tax, mobile towers, user charges of solid waste, water, parking. It is said that country can institute constitutional governance, but it cannot realize the spirit of liberty without municipal governance.
Therefore, financial adequacy and independence are important for local bodies to fulfill their responsibilities and to achieve socio-economic development at grassroots level. काफी होलिस्टिक आंसर है, बस इंट्रो भी बढ़िया है, कंक्लूजन का बता दो, या और कोई स्कॉलरली ओपिनियन है इसमें तो बताओ। हमें तो लगता है कि जो हमारे पास है उससे भी ज्यादा इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी प्रॉपर हैं। इसमें कीवर्ड्स बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लग रहा है ना इन्होंने ये आंसर पे बहुत ज्यादा वर्क करा है। एंड ही हैज हाँ जीआईएस मैपिंग हो गया, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, मतलब इस पर्टिकुलर आंसर में ना जो कीवर्ड्स की भरम साट है पूरा है, प्रॉपर करा है, वेरी नाइस। आज शशि थरूर को भी ले आया, हम लोग तो ईश्वर जल वाली पे रुके थे। मतलब इतना ज्यादा हम एग्जाम हॉल में तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसमें से 50% भी हुआ ना तो भी इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि इतना तो नोट्स सही में भी कह नहीं है यार, जो आयुष सर के नोट्स है उनमें भी नहीं इतने अच्छे कीवर्ड्स। एकदम से नहीं है, यूएलबी पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे तो ना नोट्स डेवलप ही नहीं हुआ। मैम भी क्या होता है ना, क्वेश्चन फोकस्ड नोट्स बनाती है, आता है फिर अगले साल ऐड कर देती है नोट्स में वो टॉपिक। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई और कुछ और एडिशन है किसी का? NRG@वर्सेटाइल, डू यू गाइस हैव एनीथिंग टू ऐड? @ ही स्माइली नीति है। आयोग, अगर जी नीति बोलिए। आयोग का रिपोर्ट कुछ है तो आई थिंक वी कैन ऐड रिगार्डिंग अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, चले आगे अपन। जी ओके, क्वेश्चन नंबर 7। एनजी प्लीज, कैन यू प्लीज रीड दिस आंसर एंड क्वेश्चन? या एनआर है जी। अच्छा, एनआरजी जो भी यार, इसलिए मैं बोलता हूँ ना यार, कुछ भी नाम रख लो, स्कॉलर का नाम रख लो, बट कीप सम नेम जो नहीं, एड्रेस कर एक्चुअली पाए वो लोग। मेरा नाम है नारायण रेड्डी। नहीं नहीं, नो इश्यूज नो इश्यूज, आई एम जस्ट सेइंग कि यू जस्ट कीप एनी नेम विच विच वी कैन एड्रेस। जैसे विजन लिखा है, अब एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि विजन प्लीज रीड ऐसे। अब @ रीड कैसे बोलेंगे यार? वो ठीक है स्माइली चलो, है, वो स्माइल कर रहे हैं ठीक अंदर है ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू। एक बार यस यस, गो अहेड। एनआर, या 7th क्वेश्चन है ना? करेक्ट करेक्ट। Political decentralization has not been matched by administrative decentralization. So, answer. The aim of 73rd and 74th Amendment was to usher in a new era of democratic decentralization to realize Gram Swaraj as envisioned by Gandhi. This decentralization expected decentralization in three dimensions: political, administrative, and economic. However, federal politics and limitations of coalition government of PM Narasimha Rao meant that these constitutional amendments could only be passed through a compromise. The states were apprehensive of this decentralization project being introduced by the center on the advice of various committees formed by it in the previous decades. This resulted in a division in the provisions of the Act as compulsory and voluntary. The political decentralization that the new Panchayat Raj system has been able to achieve is a result of the compulsory provisions about the structure to be adopted by all the states. However, the administrative decentralization was left upon the wisdom and choice of states under voluntary provisions. States didn't favor the idea of losing its share of powers, which in their view were already being encroached by the parliament through control over tax share and provisions like Article 356. Furthermore, center didn't lead by example and expected only the states to share their powers with Panchayat Raj institutions. This has led to PRIs being limited to another department of the state government. Panchayat administration being controlled by state machinery, employees being appointed by the state with no independence even in the matters of health and education. The need is to empower the PRIs, especially the Gram Panchayat and Gram Sabhas need to be made vibrant with the participation of people. Second ARC report has suggested the principle of subsidiary principle to improve the PRIs. However, that will require strong will of the federal system.
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रास रूट democracy by 73rd and 74th Amendment Act has achieved political decentralization of democracy. However, administrative decentralization and financial decentralization is yet to percolate to third tier of government. Resilience of state legislature and international compulsion caused the parliament to make mandatory and voluntary provision in 73rd and 74th Amendment Act. Mandatory provision with respect to political decentralization via establishing Gram Sabha, providing reservation and method of election, state election commission are provided. But similar reforms with respect to administrative decentralization has not taken place. Functions assigned to PRI and ULBs are left to the wisdom of state legislature via voluntary provision. It includes collection of taxes, building schools, water management practices, waste disposal, energy generation, primary health center, schools, employment, irrigation infrastructure, etc. Second, ARC highlighted lack of proactive steps as root cause for administrative decentralization. Moreover, 15th Finance Commission has mentioned that lack of financial decentralization had halted administrative tasks. Local government is dependent on grants from union or state government to execute even the fundamental work of midday meal scheme. Thus, Manishankar Iyer committee highlighted that bad Panchayat Raj is worse than no Panchayat Raj. However, in states like Kerala and West Bengal, due to administrative decentralization, local government has been performing better, empowering the locals. Hence, as highlighted by the Ishar Ahluwalia, we need administrative decentralization of function and functionaries to realize the true goals of delivery decentralization. So, delivery decentralization उन्होंने बोला। यार ये सिर्फ मेरा है कि दोनों भी आंसर काफी हेवी लगे, मतलब आई मीन वेल रिटन है काफी सारे की, मतलब ठीक है, अच्छा लिखा है। लेकिन अच्छे से पकड़ में नहीं आया खुल के। मतलब कहीं ना कहीं यार पता नहीं, समझ नहीं आया अच्छे से। हाँ वही पिक्चर नहीं बना सर क्लियर। हाँ मतलब ऐसा स्ट्रक्चर पूरा ऐसा क्लियर नहीं आया, फिर ऐसे हो रहा, मतलब पता नहीं, ऐसा लगा, मुझे भी लगा ना पढ़ लिया मैंने, बस पढ़ा गया। करेक्ट, दोनों में आंसर में ऐसे ही लगा, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों। हाँ मीनिंग नहीं निकला होंगे, वो फ्लो नहीं होगा सर। क्वेश्चन लोग ये है को कि कैसा लगा? बेसिक नोट्स में डायरेक्ट कंटेंट नहीं होता ना, तो ऐसे ही आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एनी अदर कमेंट्स ऑन दिस आंसर और क्वेश्चन? कंटेंट इसमें लेकिन काफी है, मतलब पता नहीं ऐसा क्यों लगा। जैसे देखो तो इंट्रो में स्टार्टिंग में गांधी का विजन लाया है ग्राम स्वराज का, फिर पीएम नरसिम्हा राव का जो अमेंडमेंट था वो इंट्रोड्यूस करा है, फिर डिवीजन करा है कैसे, फिर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, पता नहीं, मतलब ओवरऑल तो आंसर सही लग रहा है। बाकी लोग बताओ, nr@versatile। इसको समराइज कोशिश करता हूँ कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का तो ग्राउंड बना दिया इंट्रो देके, फिर कंपलसरी और वो पॉलिटिकली नेगोशिएटेड था ये मॉडल नरसिम्हा राव और स्टेट्स के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव के कहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से पढ़ता हूँ, पहला वाला आंसर निकालिएगा। पहला वाला, हाँ ठीक है सर, रहने दीजिए। However, the administrative decentralization was left upon the wisdom and choice of states। तो जो सेकंड मेन पार्ट्स है ना सेकंड का एडमिनिस्ट्रेटिव का, तो स्टेट्स पे छोड़ा गया अंडर वॉलंटरी प्रोविजन। और स्टेट डिडंट फेवर द आइडिया ऑफ लूजिंग ए शेयर ऑफ पावर्स विच इन देयर व्यू वेर ऑलरेडी बीइंग इनक्रॉस्ड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से भी डर रहे थे, सोच रहे थे कि डायरेक्ट प्रोविजन बना के भेज दिया, तो उनको भी नहीं दे रहे थे नीचे। तो कैसे कंट्रोल किया स्टेट ने? टैक्स शेयर नहीं दिया, आर्टिकल 350 और क्या है, सेंटर डिडंट लीड बाय एग्जांपल। हाँ बोले कि सेंटर ने एग्जांपल की तरह लीड नहीं दिखाया, नहीं कि कैसे किया जाता है, खुद 356 यूज कर रहे थे, टैक्स डिवोल्व नहीं कर रहे थे, तो स्टेट ने भी नहीं किया ये काम।
और नीचे कहीं और लिखा हुआ है कि जो यूएलबी और पंचायती राज का है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी ना स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, तो वो भी प्रोएक्टिव नहीं होती उन चीज़ों में, क्योंकि ग्रास रूट मूवमेंट नहीं है तो फिर वो भी एक्टिव नहीं है, डिमांड साइड हो जाता है, सप्लाई साइड हो जाता है। ये सब लिख सकते हैं कि मैच नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन से। पॉलिटिकल तो बता देते हैं, हर कोई शुरू से बता दिए हैं, ग्रास रूट है 73 74 तो। अच्छा, कुछ वैल्यू एडिशन है क्या आप लोग में से किसी को? इसमें तो नहीं है सर, वही इसमें क्या कर सकते हैं, फंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज बार बार हर क्वेश्चन में फंड फंक्शन फंक्शनरीज को डिवॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। आज हो गया।